Okay, good evening everyone. Just let me know. Voice and screen are proper. Okay, fine. So let's just start with the session. And in our last session, we have created an image file and we have discussed about the FTK measure and we have discussed about the DEFT. So मैंने install नहीं कर रखा है. So give me some time. अभी हमें करना पड़ेगा. And you guys have tested that image file by creating like 8 GB or like 16 GB of pen drive using Autopsy or like any other software. Okay, so for testing, I have created a combined image file for 32 GB. I have just started before beginning of these classes, so let's just wait. We can use in case for the same for creating the image file too.
let's see what kind of questions are there in CHFI from like tools, whatever we are using. Okay. So here we are not seeing any questions. For this, we will see in this today's sessions. In autopsy, there is an option called hex editor or like hex code. So we can see how hex code is starting for any files like image, audio file, videos and all. Okay. So after seeing that thing, we can easily select the answer. Okay. Go to the next. All these kind of questions will be covered in a Windows forensics, like whenever we'll do the Windows registry forensics. Okay, can anyone tell me like what's the answer of this? An employee is attempting to wipe out the data stored on a couple of compact discs, CD and DVDs by using a large magnet. So you inform him that his method will not be effective in wiping out the data because CDs and DVDs are blank media used to store the large amount of data are not affected by the magnet. Optical. Is there anyone? Optical. Is there anyone more? और किसी के पास कुछ आंसर? सबने बना के रख लिया है क्या? ठीक है. Lens wants to place a honeypot on his network. ठीक है, honeypot वाला तो देखेंगे. What's the event post mentioned related to PC? Okay. Which legal document allows the law enforcement to search an office, place of business, or the other local of evidence relating to a alleged crime? Okay. इसमें क्या होंगे बताओ? Search warrant. ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस है. Search Okay. warrant. You are the working investigator. ठीक है, इसको बाद में देखते हैं. MD5 program used for. Okay, tell me about this. The MD5 program is used to wipe negative data media before recycling it. Make Verify. directories on evidence. Okay, Parth and Sanchit, you guys are preparing well. Which is the standard procedure to perform during the all forensic investigation. ठीक है, so this kind of question you guys can check. मुझे देखना है टूल बेस्ड क्वेश्चन कुछ है क्या. ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाते हैं. In a forensic the hard drive and the digital drive, what type of user is most likely to have the most files left to analyze? Okay, give me the answer for this. In which forensic examination of hard drive of digital evidence, what type of user is most likely to have the most files slack to analyze? Okay. When an investigation potential email crime, what is the first step in the investigation?
सो अबाउट दिस, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इनको आपको ऐसा कुछ पढ़ने वगैरह का नहीं है, जनरल टर्म्स में पूछे गए हैं। आपने जो भी अभी तक के एक्सपीरियंसेस लिए गए होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स वी जस्ट हैव टू आंसर। व्हाट शुड सर बी द इसका आंसर? सी होगा ना, सी होगा ना। When investigating a potential email crime, what is your first step in the investigation? Trace the IP address to its origin. Okay, write a report, determine whether a crime was actually committed. Okay, recover the evidences. Right, पहले स्टेप्स में हाँ वो देख सकते हैं, वैसा लग तो मुझे भी रहा है, बट रॉन्ग आंसर। ट्रेस द आईपी एड्रेसेस, हमने गलत एजम्पशन करा कि क्राइम्स वाज एक्चुअली कमिटेड, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। If a suspect completely located in area that may be, ऐसे theoretical questions में ना 2-3 आंसर सही लगेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो बन जाएंगे। टूल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं क्या इसमें? तो इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन यू गाइस कैन प्रैक्टिस। 100-150 क्वेश्चन तो वैसे बन जाने चाहिए। Y सारे क्वेश्चंस assumption बेस्ड हैं, लाइक एज इन्वेस्टिगेशंस, लॉ एनफोर्समेंट में क्या होने चाहिए, SMTP, what binary coding is used most often for email purpose? You see, let me just see, मैंने भी नहीं देख रखा, अभी देख रहा हूँ इसमें क्या है। ठीक है, when obtaining a warrant it is important to, तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरा। सुपर ब्लॉक इन लिनक्स डिफाइन, नेक्स्ट करते हैं। So after covering the tools ना, like 2 to 3 tools, we are having a test। अभी तक जितने सेशन हुए हैं उसके बेसिस पे डिस्क कॉपी इज, अब जिन्होंने डिस्क कॉपी टूल्स यूज किया है दे कैन ओनली टेल द आंसर। ये बताना जरा, ये हमारा मोस्ट कॉमन जितने बार हमने देख रखा है। सेक्टर इज ए हार्ड डिस्क टिपिकली कंटेन्स हाउ मेनी बाइट्स, ये तो हमने 2-3 बार देख रखा होगा। फाइव 512 हमने देखा था, जो हमने पढ़ा था उसमें भी। एरिया डेंसिटी रिफर्स टू, ये सब भी देख लेना। ठीक है, इसका बताओ, ये भी हमारे हार्ड डिस्क रिलेटेड है, जो सेकंड मॉड्यूल हमने पढ़ा था। कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेटर्स आर टिपिकली इजियर देन द पब्लिक इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशंस और ऐसे वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, एंड देन हम ज्यादा एक्यूरेटली आंसर दे सकते हैं ये सारे चीजों का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं अभी तक फिलहाल तो। और ओके, ये तो इंट्रूजन से है। Subject drive, go to next। J है क्या? JZ TQZ। ओके, सो अभी तक ऑटोप्सी, इनकेस, विनहेक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आ रखे। इन FAT32 सिस्टम 1 2 3 123 KB फाइल विल यूज हाउ मेनी सेक्टर, राइट? तो इसको अकॉर्डिंगली आपको बाइट्स में करके डिफाइन करना पड़ेगा। 512 के हिसाब से डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करके, अदरवाइज अगर आपने देख रखा है तो डायरेक्टली भी मार सकते हैं। रजिस्ट्री वाइट ब्लॉकर, सो ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चंस को भी और प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना, प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दो। अब प्रैक्टिस वाले स्टार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट कंटेंट्स हमारे।
अभी तक टूल बेस्ड नहीं मिल रहा है कुछ, इसमें है भी कि नहीं है क्वेश्चन? जनरल जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लक पे डिपेंड करता है, और इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा मुझे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर तो। क्लस्टर एंड हार्ड डिस्क वगैरह से पूछे जा रहे हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट फाइल स्ट्रक्चर सेक्टर्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, क्या होगा इसका आंसर बताओ? विंडोज का बता रहा है ये, विंडोज दैट मीन्स की हार्ड डिस्क वगैरह ही आएगा इसमें। इजी आंसर था, क्लस्टर पढ़ चुके थे हम। मोस्ट ऑफ एल एंटीएफएस डिस्क। ये भी कोड वगैरह, अब ये नेटवर्क बेस्ड वगैरह भी कुछ कुछ पूछे जा सकते हैं। We have learned like, okay, when reviewing the web logs you can see an entry for resource not found, right? resource not found के लिए कौन सा 404 पक्का ना? ये तो इजी क्वेश्चन था। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बेसिस पे ही शायद मुझे लग रहा है हायर पैकेजेस वगैरह दिया। सीएच एज कम्पेयर टू सीएच वी कैन गेट हायर पैकेजेस आफ्टर क्वालिफाइंग द सीएचएफआई एग्जाम। अदर कंट्रीज में सीएच तो बस बेस के लिए माना जाता है। जस्ट गो नेक्स्ट। मुझे टूल बेस्ड क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहे हैं कुछ भी? सो दैट विल गेट एनालिसिस की हाँ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं टूल्स बेस्ड, उस तरीके से एक्सप्लोर करना पड़ेगा टूल्स को। एसएमटीपी सर्वर ऑन द बोस, ये इतना सिंपल क्वेश्चन यार। एसएमटीपी पोर्ट नंबर जिनको सिर्फ ये इतनी बड़ी क्वेश्चन थी, बताओ। इसका आंसर सिर्फ सिंपल इतना था कि एसएमटीपी कौन से सर्वर पे रन कर रहा है, बाय डिफॉल्ट सबको पता है 25 पे। हाँ ये थोड़ा काम का लग रहा है, इसमें मास्टर फाइल टेबल तो थोड़ा न्यू लग रहा है। मतलब फाइल तो ये सब पढ़ लेना पूरा, ठीक है। एमबीआर वगैरह एफएटी ऑलमोस्ट मैंने सारे ऐसे वेल नोन टर्म्स वगैरह को ऐड ऑन करने की कोशिश करी है, ताकि बहुत ज्यादा भी सुना सुना ना लगे। लेट्स जस्ट गो डाउन। एमएफटीज तो इसको ऐसे ना अपने खुद का पैटर्न बनाना, जो रिपीटेड वे में पूछे जा रहे हैं उनको नोट डाउन करके खुद से स्टडी कर लेना। लेट्स जस्ट गो डाउन एंड राइट टू वर्क। इनिशियल पार्ट ऑफ टूल किट, ठीक है, आगे हो जाते हैं। इसमें सारे ऐसे ही क्वेश्चन लिए हुए हैं क्या? अच्छा 84 पेजेस हैं टोटल। एस क्यू क्यू एफ क्या है वो? ईमेल हेडर। इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछा गया है। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेटर ट्राइंग टू एनालाइज इफ द सिस्टम गिव्स द फॉलोइंग इमेज एज एन आउटपुट? ये देखना जरा क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, मैंने भी नहीं देखा, मैं खुद देख रहा हूँ अभी। ओके, यूजर एडमिन डेस्कटॉप लोगन सेशंस और लोगन सेशन डॉट ई और ऑथेंटिकेट पैकेज दिस ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन इसको मिला है। all the logon sessions currently active logon sessions or inactive logon sessions or details of user who can logon, क्या लगता है? Which is the right answer? इसमें यूजर नेम ये आ रहा है, यूजर तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऑल द लोगन सेशंस एक्टिव लोगन सेशंस दो हो सकता है आंसर बी। मुझे वैसे ही कुछ लग रहा है।
करंटली ऑफ वाला, इसमें टाइमिंग वगैरह भी देख लो। टाइमिंग 3:32, 3:32। हाँ, क्योंकि देखो इसमें बाकी के अब टाइमिंग वगैरह आप देखोगे ना इसमें, तो स्मार्टली इन सब चीजों के आंसर देना। पता नहीं क्या है आंसर इसका, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये सब खुद के कॉमन सेंस से भी थोड़ा देना पड़ेगा आंसर। ओके, गो डाउन। एक अभी मैं CHFI के जो लोग अभी क्वालिफाई कर रखे हैं उनको कनेक्ट करता हूँ, सो दे विल गाइड यू इन एग्जैक्ट वे कि और क्या डिफिकल्टीज आई उनको CHFI एग्जाम करेक्ट करने में। सो उसके बाद टोटली हमें मिल, अभी तक के तो देख के मुझे लग रहा है कि इजी है क्वालिफाई करना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह है नहीं, तो तुक्का ही मार के काम चला सकते हो, लेकिन नॉलेज रखना पड़ेगा। टू पीरियड ड्रिल, ये सब पहले के ही टॉपिक से क्वेश्चन है। ये वाला थोड़ा न्यू है। एक्सपर्ट विटनेस, ये भी अलग है। ग्लोबल यूनिक आईडी, ये भी अलग है। एड्रेस वायलेट, दिस वन छोड़ो, मैं ढूंढ लूंगा टूल बेस्ड क्वेश्चंस अलग से। पूछे तो जाते हैं, इसमें नहीं पूछा जा रहा, अलग बात है। इसके पूरे सेट भी मैंने भेजी थी, सारा कुछ गो थ्रू करके देख लेना, प्रैक्टिस में काम आएगा। इसमें लगे देखो आईटी अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था, राइट? तो आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2000 और जितने अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं सबको पढ़ना पड़ेगा अपने को। एज ए CHFI प्रोफेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू योर प्रोफेशनल रेपुटेशन, ये तो वैसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये मुझे लग रहा है कि टूल बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे ना, सो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स दे विल ट्राई टू आस्क कि कुछ पिक्चर्स वगैरह दे सकते हैं आपको, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। एनालाइज द हेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस इन a screenshot which of the following will be an interface from this analysis। यूजर विद यूजर नेम बैड गाय लॉग्ड इन दिस इज दिस, चलो ठीक है, आइडिया तो लगा। कोई नहीं, वो हम विनेक्स देखेंगे तो देख लेंगे। मुझे सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से एक्सप्लोर करना है आउटलुक कंटेंट, एक ही दो है। चलो कोई नहीं, ओके, इसको क्रॉस चेक कर लेना। ये तो पता नहीं कितना टाइम लगा रहा है, वेरीफाई अच्छा हो ही गया है ऑलमोस्ट। लेट्स जस्ट ओपन DFT, रिस्टार्ट नाउ। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। So last day we have tested on creating an image file. Probably we have the image file. Let's just open and अच्छा, इसके सारे यहीं पे इंस्टॉल हो गए, नो इश्यूज। वेयर इज इमेज फाइल? ओके, इसके अंदर में आई गेस है 29.2 GB। सो वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, हमने कंबाइंड बना रखा है। सो ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दैट, कितने सेक्टर्स हैं, कितने सिलेंडर्स हैं, सो दीज आर द डिटेल एविडेंस के अंदर पे। अननोन, अरे यार कंप्लीटली अच्छे से नहीं बना क्या? न्यू फोल्डर्स, ऐसे कैसे हो सकता है?
Okay, I'm making this as an writable amount invalid. ये क्रिएट क्यों नहीं हुआ? हमने प्रोसेस पहले कट कर दिया क्या? बना के रख लेना चाहिए था. 14.3 GB का इट शुड बी 29.2 GB ना. इतना कम कैसे शो कर रहा? लेट मी जस्ट ओपन दिस. ये कौन से ड्राइव को शो कर रहा है भाई? पता नहीं क्या है ये. अच्छा, पहले वाले इसका किसी को रीड कर लिया होगा इसने. ओके, ठीक है. यहाँ तक तो फिर भी देख रखा था. अभी फिलहाल उस पेन ड्राइव का नहीं देख पाएंगे शायद. लेट्स जस्ट ओपन दिस. अब ये कहाँ क्यों अटक गया? Okay, so this is the interface. And once we will click on there now, left down corner, we have the accessories, and then we have a DFT. इसमें autopsy कहाँ दिख रहा है? Okay, so these are the tools we are getting in this DFT. That's why we are going to use this, because separately there are so many tools we just have to install in a Windows or like Linux, and then we can test. So mostly we are going to use inside this OS. Okay, so let's just see like what are the tools we are getting. Those are useful. Okay, so in this particular nothing. In DFT, in analysis, we are getting this one. So D autopsy we are going to use. Okay, bulk extractor we are going to use. Okay, and then okay, these are the tools. So accordingly we'll see. SQLite 3 we can use probably. That's it. You guys can use whatever as per your need. Okay. Go down into the anti-malware. So anti-malware, I don't think so, but we'll see accordingly. For data recovery, foremost, test disk, okay, photorec, these are the options. Last day we have tested on test disk data recovery. So these are the free open source tools. For hashing, we are getting all these things. Imaging, for imaging, let's just see, Guy measure. Okay, so these are the alternative tools. We can create an image file. Okay, mobile forensics, ADB, fast boot. Okay, that's it. Network forensics. Network forensics is the important segment, right, in forensics. इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. For OSINT, OSINT में यहाँ में से कोई भी काम के नहीं होंगे, but we'll do separately OSINT. Password recovery, okay. So many usable tools are there. ये पूरा पूरी यूज होंगे. Reporting tools और बाकी के जो नहीं है वो हमें साइड से करने पड़ेंगे. So let's just open autopsy. विनहेक्स भी नहीं दिया ना इसमें, वो भी अलग से करना पड़ेगा लग रहा है.
ट्राई अगेन। ये क्या इशू दे रहा है यार, इससे बेटर हम वैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो वी हैव दिस ऑप्शन। आप इसका ऑफलाइन वाला डाउनलोड करेंगे तो ऑफलाइन वाला आपको उस तरीके से मिल जाएगा। एंड टीएसके का ही पूरा का पूरा टूल केस्ट है। सो वी आर गेटिंग 3 ऑप्शंस लाइक ओपन केस, न्यू केस एंड हेल्प। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन न्यू केस, and once we'll click on new case, these are the information we need to enter. Okay, so case name, I guess 001, description cybercrime, and investigator name I'm writing here, Perch. And we need to add host. ये थोड़ा ना अलग अलग सा दिख रहा है, ठीक है। host 1, or we can assign part of the alert database sizes. Okay, add host, add image. So this is an important part. Like in this portion, we just have to upload whatever the files we have created. Okay, so click on add image. ये थोड़ा अजीब अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। आप वो उसका ऑफलाइन वाला ही कर लेना, मुझे ऑफलाइन वाला ही करना चाहिए था। ऐड इमेज फाइल पे आप क्लिक करोगे, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेच कर दिया ना। ऐड इमेज फाइल पे क्लिक किया तो locations, right? Enter the full path sharing with the this to image file. Okay, if the image is split either row or in case, then enter this extension. यहाँ पे details दी गई है, उसका path देते हैं। Where is that path? वर्चुअल एविडेंस ये वाला लिया होगा इसने, ठीक है, या ये वाला लिया होगा इसने। लोकेशन इसकी ओपन फाइल लोकेशन, इसको ले लिया तो उसको भी ले लेना चाहिए था। ऑफलाइन वाला आप यूज करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंस होता है। अरे भाई पेस्ट सर लेकिन सर वेबसाइट में तो ऑफलाइन वाला कोई दिखा नहीं रहा। वेबसाइट्स पे दिख जाएंगे, ऐसे कैसे? आप ऑटोप्सी करना सर्च, ऑटोप्सी क्रैक्ड वाले पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोप्सी डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या 64 बिट पे? हो तो रहा है सर, विंडोज में सही चल रहा है लेकिन लिनक्स में सर ऐसा इंटरफेस दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि कैसा काम कर रहा है। वेट, लिनक्स में आपको ना जैसा मैंने ओपन कर रखा है वैसे कुछ ब्राउजर बेस्ड जाएगा लिनक्स के लिए। ऑटोप्सी फॉर लिनक्स, आपको डाउनलोड करके मैनुअली ओपन करना पड़ेगा, वैसे ही ओपन होगा जैसे हमारा ब्राउजर पे ओपन हुआ है। इसमें पाथ क्यों नहीं आ रहा है? कॉपी पेस्ट नहीं सपोर्ट कर रहा है क्या ये VMware में? DNFTK ना, फाइल नेम क्या था इसका? वर्चुअल पेन ड्राइव। सर जो ऑफलाइन है ऑटोप्सी और ये जो है DEFT का, तो इसमें ज्यादातर
सेम ही रहता है क्या, अलग हाँ अलग सेम ही रहेगा, लाइक इंटरफेस स्टार्टिंग के डिफरेंट मिल रहे हैं इसमें, वो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर है और ये हमारा लोकल होस्ट में सर्वर्स के थ्रू ओपन हो रहा है, राइट। तो इस वजह से थोड़ा ये चल रहा है, अदरवाइज उसमें आप यूज कर सकते हैं। उसको भी देख ही रहे हैं, अभी 1 GB की फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। टाइप डिस्क माउंटेड, ओके, क्लिक इंस्टॉल है। इनवैलिड विद इमेज आर्गुमेंट, ये इशू आएगा, इसे मुझे लग ही रहा था। चलो कोई नहीं, ऑफलाइन वाला कर रहा है, सॉरी। हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क गलत दिया है क्या? बात के लिए गलत दे दी है क्या हमने? कहाँ गया? Where is that? छोड़ो, इसमें क्या गड़बड़ है यार। चलो, या तो वेट करते हैं या तो फिर कोई स्क्रीन शेयर करो, एक बार ऑटोप्सी ओपन करो। 2 से 4 मिनट वेट करते हैं, ठीक है, उसको ओपन करते हैं। सॉरी, इमेज फाइल लास्ट डे वी हैव टेस्टेड, सो दिस वन इज द, अभी इन दोनों में देखो बिल्कुल पता चल पा रहा है लाइक कौन सा क्लोन है, कौन सा इमेज फाइल है। दिस वन इज, ये आपका पेन ड्राइव के अंदर में 2-3 पिक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, दिस इज एक्चुअल हार्डवेयर जो मैंने इंसर्ट कर रखा है, राइट। एंड दिस वन इज इमेज फाइल, जिसके अंदर भी वही सारी इमेज फाइल आपको दिख रही होंगी। ये फाइल एलिमिनेट ना, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, इजेक्ट करता हूँ एक को, तो ई विल बी इजेक्टेड, ई हमारा चला गया। अभी देखो ये भी, तो वी कैन यूज बोथ दीज टू ड्राइव्स लॉजिकली। अब इसमें हम कोई भी चीज डिटेल्स डाल सकते हैं और डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, बस हमारा जो फाइल इमेज फाइल्स वी हैव क्रिएटेड, वी जस्ट हैव टू सेंड टू एनीबॉडी, लाइक इन गूगल ड्राइव और क्लाउड से कहीं भी सेंड कर सकते हैं, एंड दे कैन फर्दर टेस्ट ऑन दैट। ओके, तो ये इसकी अच्छी बात है, इसका हम रियल लाइफ में अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। दिस इज एफ एंड दिस इज जी, ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, यहाँ से डिलीट करना और बाकी सारा कोई, अगर मैंने राइटेबल बनाया होगा तो वी कैन डिलीट टू, यहाँ से डिलीट किया, हालांकि रीडेबल बनाया है इसको। तो लेट्स सी, ये बिल्कुल पेन ड्राइव जैसा ही काम कर रहा है। डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या इसमें? डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, मुझे राइटेबल बनाना चाहिए था उसको। तो राइटेबल बनाते तो बिल्कुल पेन ड्राइव के जैसे हम यूज कर सकते थे। नाउ इफ विल टेस्ट रिकवरी ना, तो इस पे जैसे हम पेन ड्राइव पे टेस्ट करते हैं वैसे इस पे भी टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट रन अगेन, लास्ट टाइम पे हम कर तो रहे थे। ओपन, click and then run as administrator, click on yes, no, और अभी हमने 29 GB सिलेक्ट किया एंड देखते हैं अभी कुछ रिकवर कर पाता है। रिकवरी कंप्लीटेड एंड नो डायरेक्टरी फाउंड। ओके, गिव मी 1 मिनट, पेन ड्राइव एंड दिस स्कैन फॉर द होल। तो यहाँ पे देखो ये सारे डिटेल्स निकाल रहे हैं, कल हमने कुछ और रखा था। लेट्स जस्ट सी वो रिकवर हो रहे हैं या फिर तो सिर्फ अभी जो हमारे फाइल्स हैं उसको फाइंड आउट किया है। अभी तक सिर्फ यही आ रखे हैं, कल हमने कुछ और रखा था। हो सकता है ओवर राइटिंग में इशूज हो, हट गए हों या पता नहीं। अच्छा, मूवीज 2 फाइंड आउट किया मैंने, तो एक ही डाला था, तो कुछ कुछ और चीजें भी फाइंड आउट कर रहा है इसमें से। मूवीज 4, दैट मीन्स कि ये इसके अंदर से कुछ वीडियोस वगैरह होंगे, उनको रिट्रीव करने की कोशिश करे, और ये हमारा लॉजिकल फाइल है, राइट। कहाँ गए यार? ये इतने सारे पीडीएफ्स और ये सारे कुछ, ठीक है, जितने भी चीजें थी इस पेन ड्राइव पे, इस पे एक्चुअली वीडियोस ही थे, कुछ हैकिंग के होंगे या ब्लैक हेड वगैरह के कुछ कुछ चीजें होंगी। सो दोज आर द थिंग्स इट इज ट्राइंग टू रिकवर। दैट मीन्स कि हम ये वर्चुअल पेन ड्राइव से कर रहे हैं, दिस इज अ इमेज फाइल नॉट एक्चुअल पेन ड्राइव। अभी इस फाइल को हम किसी को भी भेजेंगे, इस पेन ड्राइव से कौन सी फाइल डिलीट की गई थी या फिर तो इसमें क्या छेड़छाड़ किया गया था, लेट सपोज दिस इज द इमेज फाइल ऑफ ए विंडोज, राइट, पे हार्ड डिस्क और लाइक उसमें तो वी कैन एनालाइज लाइक की कुकीज हिस्ट्रीज और
sorry, browser histories, cookies and any activities and any changes with the file. तो उन सारी चीजों को हम चेक कर सकते हैं just with the help of a virtual file. So that is a good thing कि हम सिर्फ इमेज फाइल से सारा काम कर सकते हैं. फिलहाल के लिए मैं इसको रोक दे रहा हूँ, इतनी सारी चीजें रिकवर कर रहा है. So definitely we can apply recovering on these email file. इसको स्टॉप करते हैं, Ctrl+C कट कर देते हैं इसको. ओके एंड गो टू द दिस. ये तो नहीं काम कर रहा है. अच्छा, किसी ने कोई शेयर करने वाले थे ना, इसको पावर ऑफ ही कर देते हैं. अगर डाउनलोड हो गया होगा. आपके पास इमेज फाइल है क्या अमरजीत? हाँ सर है. इमेज फाइल है. मेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है वैसे. 45 सेकंड. कितने जीबी का इमेज फाइल है आपके पास में? रुक ही जाओ, हो ही गया बस. कर लेता हूँ मैं इसे. अगर इसमें भी कोई दिक्कत आएंगी तो फिर हम शेयर करते हैं. यहाँ पे देखो एक चीज लिख रहा है, लिनक्स विल नीड द slethkit java.dev.debian पैकेज. तो इसके कुछ पैकेजेस वगैरह की नीड पड़ सकती हैं अगर ऑफलाइन वगैरह रन करने के लिए. अदरवाइज लिनक्स पे मैंने ब्राउजर बेस्ड इसको रन करा है. विंडोज में ठीक ठाक से चलेगा. लेट्स जस्ट स्टार्ट. बिगनिंग से ही देखते हैं स्टार्ट करके, सो दैट जिनको ऑफलाइन वाले डाउनलोड करके रन करने हैं दे कैन रन दैट. क्लिक ऑन नेक्स्ट और मॉडिफाई. नेक्स्ट इंस्टॉल. कहाँ गया ऑटोप्सी? ऑटोप्सी हमारी कल खत्म होंगी और उसके बाद फिर आइदर विल सी इन केस और विनहेक्स कल स्टार्ट हो जाएगा. डे आफ्टर टुमारो विनहेक्स, ऑटोप्सी और ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए लग रहा है मुझे. ओके सो अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड ओपन करेंगे सो दिस इंटरफेस विल गेट. अब यहाँ पे वी कैन क्रिएट अ न्यू केस और इफ वी हैव सेव्ड एनी प्रीवियस केसेस जहाँ तक हमने काम कर रखा था, सो इन दैट केस वी कैन
चूज ओपन केस, राइट। अभी फिलहाल के लिए हमने न्यू केस पे क्लिक किया, तो न्यू केस पे केस नेम मांगा जा रहा है, हमने यहाँ पे केस 1 पुट कर दिया। बेस डायरेक्टरी आप इसका कुछ भी डाल दो, लाइक मैं फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट पे जा रहा है ना, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे जाने देते हैं, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। केस नंबर, सो ये हमारे सीओसी के बेसिस पे फिलअप करा जाता है, तो केस नंबर फिलहाल रैंडम 001, नेम मैंने यहाँ पे लग दिया लक्ष्य, एंड फोन नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल दें, नोट्स नथिंग, एंड क्लिक ऑन फिनिश। क्रिएटिंग केस डाटाबेस। अब यहाँ पे ना इसके फायदे क्या हैं, इसके ईच एंड एवरी ऑप्शंस एंड फीचर्स को हमें एनालाइज करना है, सो दैट इफ एनी क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोप्सी। तो हो सकता है जैसे लाइक अभी विनेक से कुछ स्क्रीनशॉट दिए गए थे, यहाँ के कुछ पर्टिकुलर, यहाँ पे जैसे आपको इमेज एंड वीडियोस में और लाइक टाइमलाइंस में लाइक देयर आर डाटा समरी सेक्शन, तो उसमें ग्राफिकल फॉर्मेट में चीजें दिखती है हमें, तो हमें हर एक टर्म्स एंड फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि कौन से फीचर्स का क्या यूज है, एंड इन इन्वेस्टिगेशंस हाउ दैट फीचर्स कैन हेल्प, तो उनको हमें पता है और हमने प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत कर लिया। लाइक हेक्स कोड वगैरह हमने देख लिए, और भी कुछ कुछ ऑप्शन दिखते हैं, अभी देखेंगे उसमें। लाइक किसी ने फाइल नेम वगैरह चेंज कर रखा है विंडोज का, जनरली इफ विल मेक हार्ड ड्राइव और लाइक विंडोज इंटरनल मेमोरीज इमेज फाइल ना, तो उस पर ज्यादा बेटर हम एनालिसिस कर पाएंगे। सो आई विल असाइन अ टास्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोप्सी। अभी जो हम काम करेंगे उसके बेसिस पे एक टास्क असाइन करूंगा, आप करके आना, और नहीं तो फिर मुझे कम से कम 100 GB के राउंड अराउंड की एक इमेज फाइल बनानी पड़ेगी, लाइक सी ड्राइव की, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन रिट्रीव की ब्राउजर्स पे क्या हुए हैं, या विंडोज पे कौन कौन सी एक्टिविटीज की गई हैं, वी कैन सी ऑल दोस थिंग्स। तो आप वो टास्क एक बार कर लेना, जिनके पास थोड़ा सिस्टम में ज्यादा स्पेस हो, 500 GB या 1 TB वाले जिनके हैं, आप एक ड्राइव का इमेज फाइल बनाना दूसरे इस पे। सी ड्राइव तो वैसे भी कम ही स्पेस की होती है। काफी स्लो है, लेट्स जस्ट वेट। ओके, सो जनरेट ए होस्ट, और ठीक है, फिलहाल तो यही रहने देते हैं, वी डोंट हैव टू ऐड ऑन होस्ट नेम नाउ। ये वाले सेक्शन पे ना अभी हम क्या कर सकते हैं, लाइक देखो डिस्क इमेज और वीएम फाइल, सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए इमेज फाइल, सो उस इमेज फाइल को एंड विद द हेल्प ऑफ इनकेस वी कैन आल्सो डू दैट, तो इसीलिए हम कल इनकेस और लाइक विनहेक्स एडिटर पे थोड़ा देखेंगे। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं, बट इफ यू हैव द लोकल डिस्क, अगर आपको सिस्टम वगैरह को एनालाइज करना है, तो आपका वही टास्क देके रह रहा हूँ मैं। आइदर आप इमेज फाइल के थ्रू भी जा रहे हैं एंड चूज द, अगर आपने लोकल डिस्क चूज किया और इसके थ्रू आप प्रोसीड करके देखना, एंड अदर ऑप्शंस को भी एक बार देख लेना। बेसिकली आपको ये देखना है कि सिस्टम के इंटरनल ड्राइव्स को एनालिसिस करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑटोप्सी, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे आपको क्या क्या चेक करना है उसमें वो दिखाता हूँ। फिलहाल मैं इमेज फाइल पे जा रहा हूँ, सो क्लिक करना नेक्स्ट पे, एंड पाथ आपको डाटा सोर्स की देनी है, तो डाटा सोर्स हमारा डी ड्राइव पे था, डी ड्राइव टू उस इमेज फाइल को सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे इमेज फाइल दिस वन, इसको सेलेक्ट किया, एंड हैज वैल्यूज ये ऑप्शनल है, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, दीज आर द एक्टिविटीज मेनली, ये आपको चेक करने हैं, ठीक है। मे बी लाइक इफ यू आर लाइक डूइंग ऑटोप्सीज ऑन पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, और ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज पे कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिले, राइट। फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन, एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एक के बारे में आप देखना चाहें और डिटेल में, तो वंस यू जस्ट हैव टू क्लिक देयर, एंड इन द राइट हैंड साइड यू कैन सी ये क्या चीजें करेगा, लाइक चेक ऑल फाइल टाइप, check all file type except text file, और check only multimedia and executable file, you can check you can multiple select आप यहाँ से कर सकते हैं कि क्या चीजें करेगा। अब ये वाली वो फीचर्स है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे कुछ एक CTF भी कई बार मिल जाती है कि किसी फाइल के एक्सटेंशन चेंज किए गए हैं, और वो फाइल कौन सी थी, और उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, उसके मेटा डाटा में क्या इन्फॉर्मेशन है, समथिंग लाइक दैट, कुछ आपके CTF वगैरह मिल सकते हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड रहे तो, ठीक है। तो ये वो काम करता है फीचर्स, जो कि एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर है, ये काफी हेल्पफुल फीचर्स है, इसमें आपका छेड़छाड़ किए जाने से पता चल जाता है, राइट। पिक्चर एनालाइजर पे आप क्लिक करेंगे, सो इस पे ज्यादा कोई सेटिंग्स आपको नहीं मिल रहे हैं,
तो इतने सारे ऑप्शंस वी आर गेटिंग, जिसमें से कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं तो इवन मुझे लगता है कि आई गेस iOS और एंड्रॉइड के लिए भी सपोर्टेबल है, उसकी भी ऑप्शंस आपको कुछ मिलेंगी। डाटा सोर्स इंटीग्रिटी, वर्चुअल मशीन स्ट्रक्चर, फोटो, सेंट्रल रिपोजिटरीज, कीवर्ड सर्च। iOS के लिए देखो हाँ मिल रहा है इसमें, ठीक है, एंड्रॉइड एनालाइजर दोनों ही मिल रहे हैं। सो एक और टास्क करना जिन लोगों को टाइम मिले इसमें, कनेक्ट योर एंड्रॉइड एंड ट्राई टू मेक द इमेज फाइल और लाइक जस्ट रीड आउट what are the multiple options so that we can create the image file of our internal storage मोबाइल फोन की इन ए स्प्लिटेड वे, और उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्योंकि एंड्रॉइड पे बहुत कम मिलता है। लाइक वेन एवर विल गो टू द मोबाइल फोरेंसिक्स, तो वहां पर हम एक बार ट्राई करेंगे एंड्रॉइड के इमेज फाइल बना के एंड देन उस पर टेस्टिंग करने को लेके, ठीक है। इधर आप सेलेक्ट ऑल रहने दे सकते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो इट विल टेक सम टाइम टू लोड द डाटा सोर्स, और ये पूरी स्कैनिंग चलती है इसमें, और उसके बेसिस पे इट विल गिव सम रिजल्ट्स। तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कल थोड़ा सा और बताऊंगा इसमें मैं ऑटोप्सी पे, सिस्टम एनालिसिस पे जो रजिस्ट्रीज और बाकी सारा कुछ है, उसके बाद फिर हम दूसरे टूल्स को थोड़ा देखेंगे। तो बेटर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तब तक मैं एक बार देख लूंगा व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑटोप्सी बेस्ड, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कितना एक्सप्लोर करना है। तो कल इनकेस को खत्म करते हैं, इनकेस क्योंकि सिमिलर ही है, तो एफटीके, इनकेस और ऑटोप्सी तीनों को समराइज करके कल खत्म करेंगे। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट द विनहेक्स, और कोई और टूल्स वगैरह देखेंगे उसमें अगर कुछ है तो। ड्राइव स्पाई शायद मिल जाएगा एक जगह पे, सो विल सी प्रैक्टिकल्स ऑन ड्राइव स्पाई 2 कैसे काम करता है उस पे। थोड़ा टाइम ले रहा है, सो लेट्स जस्ट वेट। बड़े फाइल में लंबा टाइम भी लग जाता है। ये आपने फोरेंसिक्स प्रैक्टिस के लिए भेजा है क्या अमरजीत? क्लिक ऑन फिनिश। यस सर। और उसको भी कर सकते हैं गाइस, दैट विल बी हेल्पफुल। और आपको कभी भी दिया जाता है ना टारगेटेड में, लाइक व्हेन यू विल सिट फॉर द एग्जाम एंड ऑल, तो उसमें भी आपको ऐसे कुछ दिया जाएगा, एक इमेज फाइल आपको दे दी जाएगी। वो किसी बैंक के लोग्स हो सकते हैं, ओके। अभी तो वो डाउनलोड करके अभी 1-1, 2-2 GB का होगा फाइल वगैरह, तो कल हम देख लेंगे उनमें से कुछ चीजों को डाउनलोड करके। तो बैंक के लोग्स में दिया जाएगा आपको क्या कि सम इमेज फाइल विल बी हिडन और डिलीटेड, या उसका कुछ चेंज किया गया था, या फिर तो कोई अदर जो साइबर क्राइम हुए होंगे उसका एक सिनेरियो देके आपको एक इमेज फाइल दिया जाएगा, एंड यू विल बी इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड आउट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इमेज फाइल के थ्रू ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑटोप्सी जस्ट हैव टू फाइंड आउट। अब देखो ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे एनालाइजिंग फाइल फ्रॉम एविडेंस सिर्फ 2% है, तो काफी लंबा टाइम लगने वाला है इसमें, राइट। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं कि फाइल टाइप में डिलीटेड फाइल करके यहाँ पे आ रहा है। इसमें अगर क्लिक किया तो इतने सारे फाइल इसने रिकवर कर भी लिए जो कि डिलीटेड फाइल्स हैं। अब इसमें से बाकी के चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं। मेटा डाटा में क्या दिख रहा है इधर, कुछ CH ब्राउजर का कुछ इसने डाटा इसमें कुछ ले रखा है। इमेज फाइल कुछ है क्या इसमें? अभी तक फिलहाल चलने देते हैं, 2% पे ही है फिलहाल। फाइल टाइप पे गए तो फाइल टाइप पे ये, एंड फाइल व्यू पे यही तीनों दिख रहे हैं फिलहाल। तो फाइल सिस्टम पे क्लिक किए तो ये सारे कुछ कुछ थंबनेल, और यहाँ पे बॉग बॉन्टी कुछ वीडियोस वगैरह, तो बहुत सारी चीजें इसने रिकवर कर रखी हैं। पता नहीं ये अच्छा वीडियोस वगैरह ही हैं सब, ठीक है। ऑल पे क्लिक किया तो लेट सपोज हमने इस पे क्लिक किया,
अच्छा, थोड़ा टाइम लग रहा है इधर डाउनवर्ड साइड में, नीचे साइड में कुछ तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा इसका व्यूइंग पता नहीं कैसा है। देखो यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में हमें वो दिख रहा है। सो अगर हमने इमेज पे क्लिक किया ना, ये इस पे बहुत कम दिख रहा है हमें, जो हमने पेन ड्राइव इंसर्ट किया था या पेन ड्राइव की हमने इमेज फाइल बना रखी थी। इफ विल एनालाइज द सिस्टम के जो सी ड्राइव्स वगैरह पे ऑपरेट करेंगे, वही मैंने टास्क में दे रखा। अदरवाइज अमरजीत ने अभी जो भेज रखा है उसको डाउनलोड करके, रुको मैं देख ही लेता हूँ अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती है तो। अच्छा, वो इसने भेज दिया। इसमें से कौन से काम किए हैं अमरजीत, जो जिसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिख जाए? पहला वाला करके देखें। हाँ सर। अरे हो जा भाई डाउनलोड। ये 1 GB के करीब का है इमेज फाइल्स, तो अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो टुमारो विल प्रैक्टिस। और ये वाले लिंक आपको वहां पे चैट बॉक्स में दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक को डाउनलोड कर लेना और बेटर एनालाइज करके देखना कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल पा रहे हो। तब तक इसमें देखते हैं। सो यहाँ पे ना, वंस यू विल क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर फाइल्स, जैसे मैंने एक पिक्चर को क्लिक किया तो नीचे में उसकी पिक्चर्स वगैरह दिख रही होंगी। सो आफ्टर सेलेक्टिंग दोज थिंग्स वी हैव सेवरल ऑप्शंस आर देयर। लाइक नीचे में आप देखोगे तो एक हेक्स का दिख रहा होगा, एक टेक्स्ट का दिख रहा है। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको जो पीएनजी फाइल के हैं, एंड हेक्स दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, एप्लीकेशंस, फाइल, मेटा डाटा। तो यहाँ पे कई सारे और इन्फॉर्मेशन भी निकाले जा सकते हैं। लाइक मैंने हेक्स पे क्लिक किया, तो हेक्स पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ इसके हेक्स कोड आ रहे हैं। ओके, एंड देयर इज अ क्वेश्चन जहाँ पे कि आपने देख रखा होगा हेक्स कोड का ऑफसेट हमेशा ही जो स्टार्टिंग के जो लिखे हुए आ रहे हैं आपको 0x करके आपको दिख रहा होगा, एंड दैट इज अ क्वेश्चन। इसलिए आपने हर एक ऑप्शंस को देख रखा है कि वो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, उनके कोड कैसे दिख रहे हैं, देन ओनली यू आर बेटर अवेयर टू गिव द आंसर। तो आपको पूरे चीजों को एक्सप्लोर करना है। इसमें से टेक्स्ट पे आएंगे तो टेक्स्ट पे कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता था कि सम टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और लाइक कुछ उसमें हिडन कुछ चीज डाली जाती, तो वहां पे आपको कुछ टेक्स्ट दिखता है इसमें मे बी। एप्लीकेशंस पे सिंपली वी आर गेटिंग सम पिक्चर्स, एंड फाइल मेटा डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे था, एंड फाइल सिस्टम, अगर ये वाकई में कोई इमेज होता है, ये दिखाया रहा कि अनअलोकेटेड था, दैट मीन्स कि डिलीटेड डाटा थी उसमें जो रखी गई थी। अगर एक्चुअल डाटा होती है और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होता, सो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है इसमें, राइट। अभी तो फिलहाल इसकी प्रोसेस ही बहुत स्लो चल रही है, 2% पे चल रहा है। तो मुझे एक जेन्युइन जो विंडोज बेस्ड इमेज फाइल बनानी पड़ेंगे इधर, या फिर अभी जो हम डाउनलोड कर रहे हैं उसको करना पड़ेगा। एंड अगर हमारे कोई डिलीटेड फाइल इससे रिकवर होते हैं, तो हमें फिर यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर में आपको दिख रहा होगा सेव टेबल एज CSV या एक्सपोर्ट वगैरह, इसको हम कर सकते हैं। तो पहला चीज तो यहाँ पे हमने देख लिया, और देखता हूँ हम क्या देख सकते हैं। एनालिसिस रिजल्ट अभी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि नीचे में देखो 3% करीब दिखा रहा है। ये काफी डीपली इनको रीड डाउन कर रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। ऐड डाटा सोर्स से वी कैन ऐड ऑन द डाटा। हमने अगर एक बार केस पे क्लिक किया, सो इन केस लेट्स सी व्हाट आर द अदर ऑप्शंस। डाटा सोर्स समरी, ऐड डाटा सोर्स, डिलीट केस, क्लोज केस, राइट। इसमें तो ज्यादा कुछ ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। केस डिटेल्स पे वो कंप्लीट होने पे ऐसा कुछ दिखेगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है हमें। सी, सो डाटा सोर्स समरी में, एज इन समरी वी कैन सी कि इसमें कितने एनालाइज डाटा हैं। इस पे बहुत कम इंफॉर्मेशन मिला है हमें। अगर ये विंडोज का होता तो यूजर्स की एक्टिविटी एनालिसिस, रिसेंट फाइल, तो ये एज एन समरी में आपको दिखाता कि इसके ज्योग्राफिकल लोकेशंस, टाइमलाइन, ओके, और इंजस्ट हिस्ट्री, कंटेनर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि इसमें क्या क्या चीजें अप्लाई किए गए हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला। सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल थिंग्स, जनरली हमें डाटा सोर्स समरी को भी एक बार चेक करना होता है। ये ऑप्शंस भी थोड़ा काम का है। एंड रिपोर्ट वाला तो अभी जा नहीं सकते, तो अभी डाउनलोडिंग भी पता नहीं कितने स्पीड से हो रही है। आपके पास डाउनलोडेड है ना अमरजीत? एक बार एड ऑन करना, तब तक मैं इसको खत्म करके आपकी स्क्रीन शेयर आउट कराऊंगा उसमें। ओके सर। क्लोज केस, जनरेट रिपोर्ट, इमेज वीडियो पे क्लिक किया तो स्लो स्लो चल रहा है।
जियो लोकेशंस अभी इसने कुछ भी पिक्चर्स या कहीं से भी इसने कुछ फैच नहीं कर रखा। समटाइम्स कुछ जियो लोकेशंस भी टैग्ड रहते हैं आपके जो भी इमेज फाइल रहती हैं उससे रिलेटेड। जनरेट रिपोर्ट तो काफी इजी है, तो जब तक ये खत्म नहीं, इसमें कुछ भी हमें बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। लाइक जो हमने चेंज किए थे फाइल वगैरह, तो आप वो भी खुद करके देख सकते थे कि किसी फाइल को आपने रीनेम किया था एंड देन आपने डिलीट कर दिया था। सो हाउ इट इज डिटेक्टिंग दैट, एक एक फीचर्स के बारे में, या अभी आपको कुकीज या इंटरनेट हिस्ट्रीज, एक्टिविटीज, ब्राउजर्स, तो वो विंडोज के इमेज फाइल को एनालिसिस करते तो ज्यादा हेल्पफुल होता। हम देख ले रहे हैं अभी जो बना बनाया है फिलहाल के लिए। अगर हम नॉर्मल सेकेंडरी डिवाइसेस पे अप्लाई करें, सो दिस इज द इंटरफेस, ऐसा कुछ बनाना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में एक एक करके आपको सारी समरी दिखती है। यहाँ पे वीडियो और इमेज फाइल्स वगैरह भी कंबाइंडली दिखता है आफ्टर ये कंप्लीट अगर पूरा होगा तो। उसके बाद फिर हम एक एक करके उसको ये कर सकते हैं, अभी कौन सी फाइल है, उस फाइल के क्या मेटा डाटा है, हेक्स एडिटर क्या है उसका, हेक्स कोड क्या है, एंड अगर कुछ उसमें छुपाया गया है तो वो भी दिख जाता है इसमें, टेक्स्ट एंड ऑल। एंड बाकी उसको अगर आपको एक्सपोर्ट करें तो आप उसको वो भी चीजें कर सकते हैं। तो इट इज हेल्पिंग इन रिट्रीविंग। तो नॉर्मल केसेस में समझ में आया। अभी हम एक बार सिनारियो बेस्ड देखते हैं कि किसी विंडोज के हमें अगर मिलते हैं इमेज फाइल, या अगर हमें दी जाती है तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन एनालिसिस हम कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करना होगा, सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन जनरेट रिपोर्ट, और यहाँ पे जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, अगर HTML रिपोर्ट में चाहिए तो HTML में, एंड देन आप नेक्स्ट करके इसके लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करके, अभी तो कुछ बना नहीं है। ऑल रिजल्ट अभी तक जितने इसने फाइंड आउट किए, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट इस तरीके से ऑटोप्सी की, किसने क्या करा, इसमें क्या क्या चीजें हुई, ये सारी डिटेल्स आपको, इसमें क्या क्या अप्लाई किया गया, और अभी तक क्योंकि इसमें कंप्लीट हुए नहीं थे, इधर आप क्लिक करोगे तो कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मेटा डाटा वगैरह में भी सिर्फ कुछ कुछ ब्राउचर वगैरह ही मिल रहे हैं। टैग्ड फाइल में भी कुछ नहीं मिला। टैग्ड इमेज, टैग रिजल्ट में भी ये भी चल ही रहा है। तो ये बिल्कुल इसका समरी था। अभी डाउनलोड जो हो रहा है हम उसको एक बार देखते हैं, एंड इट्स योर टास्क कि आप उसको विंडोज के एनालिसिस में अप्लाई करना। स्क्रीन शेयर करके एक बार बताना जरा अमरजीत। सर शेयर के परमिशन। ओके वेट 1 मिनट। ओके, अब स्क्रीन शेयर करना। ओके ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। सो जो डाउनलोडेड आपको इमेज फाइल मिलेंगी वो उसी तरीके से आपको सिनेरियो बेस्ड दिया जाएगा किसी CTF वगैरह पे। आपने वहीं से डाउनलोड करके किया है ना अमरजीत? हमें ऑडिबल? हाँ, सर माइक वहाँ ऑन रखो, से, माइक। हाँ वहाँ हाँ से ठीक है, अब उसमें जाना। हाँ, अब उसमें जाना। ठीक है। सो इन लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी, सब पहले समरी में जाना, पहले उसमें जाना जिसमें थे, बैक। ओके, so we have these information, so we can see 4 फाइल सिस्टम एंड ऑल में इतना दिख रहा है, और इस पे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो सो यू कैन ट्राई द अनदर वन, या मैं ऐसा कुछ टेस्टिंग के लिए कोई इमेज फाइल फाइंड आउट करके टेस्ट करने के लिए आपको दूंगा इसमें। तो इसमें एक्सप्लोर करना, देखना जरा, फाइल सिस्टम में ऑल पे क्लिक करना जरा अमरजीत, क्या मिल रहा है। काफी कम इन्फॉर्मेशन है, इसलिए 1 GB का है इसमें लग रहा है। तो जितने वॉल्यूम्स होंगे उसमें वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। किसी एक पे क्लिक करना और एक्स्ट्रा और अंदर घुसते जाओ, तो जितनी ज्यादा आप अंदर इसमें घुसते जाएंगे उतना इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। अनअलोकेटेड में ये सारे फाइल्स हैं, किसी एक पे क्लिक करना। ठीक है, इस पे एप्लीकेशन का अच्छा ऑप्शन नहीं ओपन है ना, तो वो आपका इमेज वगैरह कुछ नहीं होगा। सो डाउनवर्ड साइड वी कैन एनालाइज हेक्स, टेक्स्ट, एप्लीकेशन, मेटा डाटा, OS एंड डाटा एनालिटिक्स 2, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चीजें हिडन होंगी तो डाउनवर्ड साइड में जितने ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, तो वहां से कुछ कुछ ऑप्शन अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दूसरी फाइल ओपन करना दूसरे वॉल्यूम पे। ओके, इस पे भी ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। C ड्राइव पे हमें एक्टिविटीज वगैरह का थोड़ा बनाना पड़ेगा। एक बार ऑल फाइल्स वाले पे, जहाँ पे डिलीटेड फाइल्स दिख रहे हैं उस पे क्लिक करना जरा। ऑल फाइल्स पे क्या दिख रहा है इसमें? अच्छा, टेक्स्ट, इमेज वगैरह ना, किसी एक पे टेक्स्ट पे करना जरा, क्लिक नीचे। कंटेंट्स नो टेक्स्ट ना, कुछ भी नहीं है। ये तो प्रैक्टिस के लिए उतना कुछ काम का नहीं है, फिर कुछ काम वाला थोड़ा ढूंढना पड़ेगा।
एनालिसिस रिजल्ट पे क्लिक करो, कुछ दे रहा है इसमें। एनटीएफएस वाला वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 पे क्लिक करना जरा, वॉल्यूम 2 पे, हाँ उस पे क्लिक करना। इस पे कुछ दिख रहा है सिस्टम का, करंट फोल्डर पे एक बार क्लिक करो, ऊपर में। तो बेसिकली हमें जो CTFs मिलेंगे ना, इसको ऐसे एक्सप्लोर करना है बस। कुछ चीजें मुझे और दिखानी थी, जो कि आपके विंडोज बेस्ड जो फॉरेंसिक्स होंगे उसमें जो डिटेल्स मिलती हैं, लाइक रजिस्ट्रीज बेस्ड, एक्टिविटीज बेस्ड, और आपके फाइल के साथ में क्या एक्टिविटीज की गई हैं, उसके लिए हमें बहुत बड़े लेवल पे या तो ऐसा कुछ फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा टेक्स्ट बेसिस पे। मैं सर्च करके निकालता हूँ, जो कि सिनेरियो बेस्ड इमेज फाइल दिए जाते हैं फॉर द CTF पर्पसेस। आप गूगल करके निकाल सकते हैं उस पर और उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो या तो वो कर लेना या कुछ भी यहाँ तक प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। नथिंग आई गेस, मुझे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है इसमें अमरजीत, रहने देते हैं, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया। कुछ और फाइंड आउट करके निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? इसके आगे वाला या तो टास्क करके रखना, या कल मैं कोशिश करूंगा ढूंढ के कोई एक रखूंगा जिसपे हमें दिख पाएंगी ज्यादा एक्टिविटीज, और एंड देन विल गो टू द इन केस को जल्दी से हम समराइज करेंगे और विनहेक्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑटोप्सी वापस से आएगा एक बार। सर रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड करोगे जो पुरानी क्लासेस की थी? एक या दो, अभी मैंने इंट्रो वाला तो आज ही अपलोड किया था यूट्यूब पे। टिल 7th to 10th लेक्चर, कल 1-2 लेक्चर्स अपलोड होंगे, एंड देन सो ऑन विद इन 1 डेज में, तो 2-3 दिन लग जाएंगे। अभी जाएगा, उसी पे जाएगा। ओके सर, यूट्यूब पे ही आएंगे? हाँ ओके ओके देन गाइस, टाटा बाय बाय। यहाँ तक प्रैक्टिस करो जो टास्क दिए हैं उस पे। कल और थोड़ा हम ऑटोप्सी पे और एनालाइज करते हैं बेटर इमेज फाइल पे। इमेज फाइल वगैरह तक आप पूरी प्रैक्टिस करके रखना, कोशिश करना विंडोज के C ड्राइव वगैरह पे थोड़े ऑपरेट कर पाओ तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा उसमें। और उसके बाद फिर हम इनकेस कोई एक तो हम 2 पक्का खत्म करेंगे, इनकेस और ऑटोप्सी को समराइज करेंगे। नेक्स्ट डे पे विनहेक्स वगैरह देख लेंगे। और क्वेश्चन जो हमने अभी देखे उसको भी रीड डाउन करते जाना, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है। एक बार आप रीड डाउन किए रहोगे आपके ध्यान में रहेगा, कम से कम थ्योरेटिकल बेस्ड वाला, ये IT लॉ क्या है, इन्वेस्टिगेटर्स को क्या करना चाहिए, बाकी टॉपिक एंड कंटेंट बेस्ड तो चलते ही चलते हैं अच्छे खासे हैं। अभी पार्थ एंड संचित आप लोगों का अच्छा चल रहा है, अमरजीत आपका भी ठीक ठाक चल रहा है, तो बाकी लोग जो लोग हैं वो लोग भी फोरेंसिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। इस संडे सैटरडे तक कोशिश करेंगे हम एक आध टेस्ट लेने का, ताकि मुझे पता चलेगा ये CHFI की कंटेंट्स और नॉलेज किन की बेहतर चल रही है। ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।